اس کا چہرہ دکھا دو. وکیل بولے چہرہ مت دیکھیے. جج بولا ذرا چہرہ تو دکھاؤ. جب چہرے سے نقاب اٹھائی جاتی ہے, قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے بابا فرید کے چہرے سے نقاب کا اٹھنا تھا کہ جج کرسی میں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد. اب فیصلہ سنانے والا ہی مسلمان ہو گیا ہوا, فیصلہ کس کے حق میں ہو؟ آئے مسکراتے ہوئے اپنے گھر پر, شام ہو گئی تھی, دیر ہو گئی تھی, ماں کھانے پہ انتظار کر رہی تھی. بولے بیٹا بڑی دیر لگا دی, کہاں سے آ رہے ہو؟ مسکرا کے فخریہ لہجے میں کہا ماں تو نے اپنے بیٹے کا نام نہیں سنا, تو نے اپنے بیٹے کا ذکر نہیں سنا, تو نے اپنے بیٹے کا چرچا نہیں سنا. دہلی کی گلیوں میں تیرے بیٹے کا نام ہو رہا ہے, دہلی کی گلیوں میں تیرے بیٹے کا نام لیا جا رہا ہے. ماں نے کہا بات کیا ہے؟ بولے ماں اللہ نے مجھے ایسا کمال دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. ماں نے کہا بیٹا تیرا کوئی کمال نہیں ہے, جو کمال ہے وہ سب تیری ماں کا کمال ہے. بولے ماں سمجھ میں نہیں آئی بات, چہرہ میرا دیکھتے ہیں, کلمہ مدینے والے مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں, تو کہتی ہے کہ تیرا کوئی کمال نہیں, ماں کا کمال ہے. ماں بتا تو صحیح. اب بابا فرید کی ماں کہتی ہے بیٹا دنیا چین سے سوتی تھی, سن لے میرا کمال کیا ہے. بیٹا جب تو میرے شکم میں تھا تیری ماں نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا. بیٹا جب تو میرے شکم میں تھا تیری ماں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. بیٹا جب تو پیدا ہو گیا تیری ماں اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک وضو کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لیا کرتی تھی. بیٹا سردی کی لمبی لمبی راتوں میں دنیا چین سے سوتی تھی, اس وقت تیری ماں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے سخت کورے کے عالم میں, سخت سردی کے عالم میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے تیری ماں یہی دعا کرتی تھی مولا تو نے مجھے جو بیٹا دیا ہے, تو نے مجھے جو لال دیا ہے, تو نے مجھے جو فرزند دیا ہے, تو نے مجھے جو فرید دیا ہے, مولا میرے بیٹے فرید کو ایسا کمال عطا فرما دے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. قدموں پہ گر گئے, قدموں پہ گر گئے. بولے ماں میرا کوئی کمال نہیں ہے, جو کمال ہے وہ سب تیرا کمال ہے. پتا چلا ماں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے, اور ماں جب ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے ریموٹ چلا کر کے سیریل دیکھنے والی ہوتی ہے تو ان کے بچے تو تھرکتے ہوئے نظر آئیں گے ہی نا, ان کے بچے تو رقص کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہی نا. پیارے یاد رکھو مسلمانوں, اپنے بچوں کو قرآن سنا کر کے جوان کرو, اپنے بچوں کو شریعت مطہرہ کے مسائل سکھا کر کے جوان کرو, اپنے بچوں کو نعت مصطفیٰ سنا کر کے جوان کرو, اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سنا کر کے جوان کرو. یہی اولاد تمہارا ادب کرتی ہوئی نظر آئے گی. اب میں واقعہ پورا کرتا ہوں پیارے. بایزید بستامی دروازے پہ بیٹھے ہیں, اب دیکھا ماں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہو گئی ہیں, آدھی رات ہو چکی ہے. پانی چھلکنے کی جب آواز آتی ہے, جب پانی چھلکنے کی آواز بند ہو گئی تب دروازہ کھٹکھٹایا بایزید بستامی نے. 40 سال کے بعد میں بیٹا آیا ہے, گیا تھا تو بچپنے سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, جب واپس آیا ہے تو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے بیٹے نے. 40 سال کے بعد آئے ہیں تو اندر سے دل نے کہا کہ بایزید ماں تمہیں پہچانے گی کیسے, لیکن پیارے ماں تو ماں ہوتی ہے, اولاد چاہے کتنے بھی دنوں کے بعد میں کیوں نہ آئے لیکن ماں اپنے بیٹے کو اس کے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتی ہے, ماں اپنے لال کو اس کے قدموں کی آہٹ سے پہچان لیتی ہے. جب بایزید بستامی نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آتی ہے میرے لال بایزید تو آ گیا, میرے بیٹے تو آ گیا. دروازہ کھولا, ماں نے اپنی آگوش میں بھر لیا, ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کتنی دور چلا گیا تھا میرے بیٹا اپنی ماں سے, کتنی دور چلا گیا تھا میرے لال اپنی ماں سے. تجھے اپنی ماں کی یاد نہیں آئی میرے بیٹا, تجھے میرے لال اپنی ماں کی بالکل یاد نہیں آئی, کتنے دنوں کے بعد میں آیا ہے. آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بایزید بستامی نے کہا ماں میں جنگلوں میں عبادت کر رہا تھا, میں جنگلوں میں اپنے رب کو یاد کر رہا تھا. پیارے یہ ماں ہے, ماں اپنی اولاد کو پریشانی میں ماں نہیں دیکھتی ہے. پیارے آج تمہارا اصول تو یہ ہے, آج تمہارا بیٹا بیمار پڑے تم پریشان ہو جاتے ہو, آج تمہاری اولاد بیمار پڑے تم ڈاکٹروں کے گھروں کے چکر کاٹتے ہو. اگر کھرپدا کی سرزمین کے ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو تم سورو لے کر کے جاتے ہو, سورو فائدہ نہیں ہوتا تو بالاسور لے کر کے جاتے ہو, وہاں فائدہ نہیں ہوتا تو اڑیسہ کے اور بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کو دکھاتے ہو. میں آج تم سے یہ
पूछना चाहता हूँ खिरपदा की सरजमीन पर उनसे सनम शाहनवाज बाबा में आने वालों, अपने दिल पे जरा हाथ रख करके मुझे बताओ तो सही, आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़े तुम परेशान हो जाते हो, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़े तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़े तुम्हारी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़े तुम रातों दिन परेशान हो जाते हो, डॉक्टरों पे डॉक्टर बदलते हो, हॉस्पिटलों पे हॉस्पिटल बदलते हो, एक डॉक्टर से फायदा नहीं होता दूसरे के पास लेकर के जाते हो और जाकर के क्या कहते हो डॉक्टर से, डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। एक खिरपदा की सरजमीन पे आने वाले मुसलमानों में तुमसे पूछता हूँ, आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़े तुम परेशान हो जाते हो, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़े तुम टेंशन में पूरी रात गुजार देते हो, डॉक्टरों के चक्कर काट के कहते हो जमीन बिके तो बिक जाए, पैसा जितना चाहे उतना लग जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज तो बहुत सारे इंतजामात हैं, आज तो बहुत सारी सहूलतें हैं, आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है, आज तो कार का जमाना है, आज तो बस का जमाना है, आज तो इंसान के पास में दौलत की भी फरावानी है। अब से जरा 40-50 साल पीछे जाकर के तो देखो, अब से जरा 30-35 साल जरा पीछे जाकर के तो देखो, आज तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है डॉक्टरों के यहाँ पहुंच जाते हो गाड़ी से, आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़ता है डॉक्टरों के यहाँ पर तुम पहुंच जाते हो, लेकिन अब से जरा 30-35 साल पीछे जाकर के तो देखो प्यारे वो दौर जरा तुमने कैसे अपने बचपन को भुला दिया, तुमने कैसे अपने बचपन को फरामोश कर दिया। आज तुम्हारा बेटा बीमार पड़े तुम डॉक्टरों के घरों पे जाते हो, ऐसे ही बचपन के आलम में जब तुम बीमार पड़े थे तुम्हारे माँ बाप भी डॉक्टरों के पास तुमको लेकर के गए थे, तुम्हें जब बचपन में तकलीफ हुई थी तुम्हारे माँ बाप ने भी डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटे थे, पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन बाप दौड़ता हुआ जाता था, पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन माँ दौड़ती हुई डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटती थी, यही कहती थी ना तो रात देखती थी ना तो सुबह देखती थी, 3-3 टाइम का खाना माँ को नसीब नहीं होता था, लेकिन अपने बेटे को अपनी आगोश में लेकर के डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटती थी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ प्यारे मुसलमानों, उनसे सनम शाह बाबा में आने वालों, एक अल्लाह के वली के उर्स में आए हो, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ तुम्हारा बेटा बीमार पड़े तुम परेशान हो जाओ, ऐसे ही बचपन में जब तुम परेशान हुए थे, जब तुम्हें तकलीफ हुई थी, जब तुम्हें बस बीमारी ने घेरा था, तो इन्हीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गोद में ले जाकर के डॉक्टरों के घरों पे जाके कहा था डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, मेरी पूरी जायदाद बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे भुला दिया तुमने अपने बचपन को, कैसे फरामोश कर दिया तुमने अपने बचपन को। तुम्हारा बेटा बीमार पड़े तुम्हें तकलीफ होती है, जैसे तुम बीमार हुए थे बचपन में तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ हुई थी, आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आए, तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, आज नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या घुसे, तुमने माँ बाप को एक झोपड़ी में रहने पे मजबूर कर दिया, खुद को लिंटर में रहते हो और माँ बाप को छप्पर में रहने पे मजबूर करते हो। क्या जवाब देगा कयामत में अपने रब को, क्या जवाब देगा अपने महबूब को, क्या जवाब देगा अपने प्यारे आका को। अगर मेरे आका ने तुझसे पूछ लिया कयामत में माँ बाप की दौलत तुझे मिली थी, माँ बाप की नेमत बुढ़ापे के आलम में तुझे मिली थी, तू बुढ़ापे माँ बाप की खिदमत करके आया है कि नहीं आया है, क्या जवाब दोगे मैंने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया था, वो माँ बाप जिनने मुझे सीने से लगा करके रखा, वो माँ बाप जिनने मुझे कलेजे से लगा करके रखा, मैंने उस माँ बाप का बिस्तर अपने घर से बाहर कर दिया। प्यारे कयामत के दिन याद रखो अपने रब को राजी कर लो, और रब कैसे राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिसके माँ बाप उससे राजी हैं उससे अल्लाह राजी है, और जिससे अल्लाह राजी है उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत मसलक आला हज़रत उर्से सनम शाह नवाज बाबा हज़रत अल्लामा फुरकान रज़ा साहिब क़िबला। माँ बाप को सताने वाला कभी कामयाब नहीं रहा, माँ बाप को सताने वाला कभी दुनिया में सुरखरू नहीं रहा। प्यारे जिस दिन ने माँ बाप को सताया दुनिया में भी जलील हो गए, क़यामत में भी उन्हें अज़ाब मिलेगा और कब्र में भी उन्हें अज़ाब मिलेगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसके माँ बाप उससे राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे उसके माँ बाप राजी नहीं है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है, और जिससे अल्लाह राजी नहीं जिससे रसूल राजी नहीं तो बताओ जन्नत में कैसे जाओगे।
नबी फरमाते हैं जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। जब माँ ही राजी नहीं है, बाप ही राजी नहीं है, तो बताओ जन्नत में कैसे दाखिला हो सकता है। ए नौजवानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, अगर सरफराजी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। सहाबियों का हाल हमने देखा है प्यारे। हजरत अलकमा ऐसे सहाबी हैं जिनकी रूह नहीं निकल रही थी। नबी के पास सहाबा आए, आका बड़े परेशान हैं, आप दुआ कर दीजिए। आका आप अलकमा के लिए आप चलिए जरा उनके लिए कुछ कर दीजिए। नबी तशरीफ लाते हैं, उनका हाल देखा, रूह नहीं निकल रही थी। सहाबी हैं प्यारे। नबी ने फरमाया क्या इनकी माँ जिंदा है? बोले हाँ आका इनकी माँ जिंदा है। माँ को बुलाया जाता है, माँ से कहा इसकी गलती को माफ कर दो। माँ ने कहा आका मैं माफ नहीं करूंगी, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं बहुत नाराज हूँ। नबी ने फरमाया अगर तुम इसे माफ नहीं करोगी तुम्हारे बेटे को जला दिया जाएगा। फरमाया लकड़ियां इकट्ठी करो, लकड़ियां जमा की जाती हैं। नबी ने फरमाया आग लगा दो। इरशाद फरमाया अलकमा की माँ इसे माफ कर दो वरना तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने आग में जला दूंगा। अलकमा की माँ ने कहा आका मेरा बेटा अगरचे मुझे परेशान करता था, लेकिन मैं अपने बेटे से नाराज थी, लेकिन आका मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। नबी ने फरमाया तो माफ कर दो। फरमाया जब तू दुनिया की आग में इसे जलता हुआ नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में कैसे देख सकती है। माँ ने कहा आका मैंने अपने बेटे की गलती को माफ किया, मेरे रब ने भी माफ किया, इतना कहना था कि उनकी रूह निकल जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ वो सहाबी रसूल है और दुनिया का कितना भी बड़ा वली क्यों ना हो, दुनिया का कितना भी बड़ा कुतुब क्यों ना हो, दुनिया का कितना भी बड़ा अब्दाल क्यों ना हो, लेकिन किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। अलकमा अपनी माँ को मारते नहीं थे, अलकमा अपनी माँ को गाली नहीं देते थे। बस इतनी सी बात थी, कभी बीवी में और अलकमा की माँ में झगड़ा हो जाता था तो अलकमा अपनी बीवी की तरफ से बोल दिया करते थे कि मेरी माँ तू मेरी बीवी से मत ज्यादा बोला कर। बस इतनी सी बात थी प्यारी। इतनी सी बात अल्लाह को इतनी नापसंद आई कि अलकमा की रूह नहीं निकल रही थी जब तक माँ ने उसे माफ नहीं कर दिया, जब तक माँ ने उनकी इस खता को माफ नहीं किया। प्यारे उनकी रूह कब से उनसरी से परवाज नहीं कर रही थी। वो लोग जो अपनी माँ का बिस्तर घर से बाहर कर देते हैं, वो लोग जो अपने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बांट देते हैं कि बड़ा के छोटे बेटे के पास में बाप रहेगा, बड़े बेटे के पास में माँ रहेगी। प्यारे बुढ़ापे में उनको मत बांटो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बांटा था, इसलिए याद रखो ये माँ बाप तुम्हारे लिए नेमत है, नेमत। नबी फरमाते हैं वो दुनिया में जलीलो ख्वार हो जाए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाए और वो जन्नत में दाखिला ना करे। सुने वाकया पूरा करके तकरीर खत्म कर रहा हूं। बरगे हिना पे लिखता हूं दर्दे दिल की बात, शायद के लगे दिल रुबा के रफ्ता रफ्ता हाथ। प्यारे मैं आपको ये बताना चाहता हूं माँ बाप को सताने वाला दुनिया में कभी कामयाब नहीं रहा, दुनिया में भी जलील रहा। सोसाइटी में उसकी कोई इज्जत नहीं होती, मुआशरे में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। प्यारे बायजीद बुस्तामी अपनी माँ से मोहब्बत करते थे, माँ भी अपने बेटे से मोहब्बत करती थी, माँ राजी थी अपने बेटे से। बायजीद बुस्तामी अपनी माँ के गले लगे हुए हैं। माँ ने कहा बेटा बहुत दिनों के बाद आए हो, मेरे लाल इतने दिन तक तुम कहाँ चले गए थे, मेरे लाल तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई। तब बायजीद बुस्तामी ने आंसू पोंछते हुए कहा माँ मैं अपने रब के हुकूक की अदायगी के लिए गया था। माँ ने कहा बेटा जिस मंजिल को तू पाना चाहता था, जिस मकाम को तू पाना चाहता था, बेटा मकाम हुजूरी तू हासिल करना चाहता था, मेरे लाल क्या तुझे वो मकाम मिल गया, मेरे लाल क्या तुझे वो मंजिल मिल गई। तब बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ जिस चीज को पाने के लिए तेरा बेटा 40 साल तुझसे दूर रहा, जिस मंजिल को पाने के लिए तेरा बेटा तुझसे 40 साल तक दूर रहा, जंगलों में इबादत करता रहा, मेरी माँ मुझे वो मकाम हासिल नहीं हुआ। इतना सुनना था, माँ के दिल में शीशे से ज्यादा नाजुक दिल सदमों से चूर हो जाता है। माँ ने मुसल्ला बिछाया, अपने रब की बारगाह में अर्ज करती है। देखो प्यारे माँ बाप की दुआ से कितना इनाम मिलता है, माँ बाप की दुआ से कितना बड़ा सिला मिलता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिसकी माँ के बाल सफेद पड़ गए हो और वो बुढ़ापे की तहनीस पर पहुंच गई हो, अगर वो अपने बेटे के लिए हाथ उठा करके दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को
बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबी की दुआ रद्द नहीं होती है, ऐसे ही बूढ़ी माँ की दुआ रद्द नहीं होती है। नबी फरमाते हैं अगर किसी की माँ अपने बेटे को 100 बद्दुआएं दे तो अल्लाह 99 रद्द फरमा देता है, एक कबूल फरमाता है। नबी फरमाते हैं और अगर किसी की माँ उसे 100 दुआएं दे तो अल्लाह 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमाता है। क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती, कोई भी माँ अपने बेटे को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती। बायजीद बुस्तामी की माँ कहती है बेटा तू 40 साल अपने रब की इबादत करके आया, तू अपनी माँ से 40 साल दूर रहा, तुझे वो मकाम नहीं मिला। बोले माँ नहीं मिला। माँ ने मुसल्ला बिछाया, माँ ने उठाए हाथ जब दुआ के लिए। हजरात गिरामी माँ के जब हाथ उठते हैं, माँ के हाथों का उठना था, आंखों से आंसू निकले माँ के। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। बायजीद बुस्तामी की माँ के हाथ उठे, आंखों से आंसू निकले, रब की बारगाह में अर्ज करती है मेरे मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता, मेरे बेटे को वो मंजिल अता क्यों नहीं फरमा देता। बायजीद बुस्तामी का बयान है अल्लाह के वली का, कहते हैं मेरी माँ का इतना कहना था कि वो मकाम मेरे बेटे को क्यों नहीं दे देता। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मेरी माँ ने जब हाथों को अपने चेहरे पे फेरा ही था कि मेरी नजरों से पर्दे उठ जाते हैं। बायजीद बुस्तामी कहते हैं जिस मकाम को बायजीद 40 साल में हासिल न कर सका, वो मकाम माँ की एक दुआ के वसीले से मिल गया, वो मकाम माँ की एक दुआ के सिले में मिल गया। कदमों पे गिर गए बायजीद बुस्तामी, अपनी माँ के कदमों पे गिर के कहते हैं दीवाना था बायजीद, मस्ताना था बायजीद। फरमाते हैं बायजीद बुस्तामी ए दुनिया वालों कामयाबी चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ, सरफराजी चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ, बुलंदी चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ, तकर्रुबे इल्लल्लाह की मंजिल पे गामजन होना चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ, फाइजुल मुराम होना चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ, सरफराजी चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ, सुरखरुई चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ। कदमों पे गिर के कहते हैं दीवाना था बायजीद, मस्ताना था बायजीद, जो अपने रब को जंगलों में ढूंढने गया था। अरे जिस रब को बायजीद 40 साल में हासिल न कर सका, वो जिस रब को बायजीद 40 साल जंगलों के चक्कर काटने के बाद भी हासिल न कर सका, वो मकाम तो वो रब तो बायजीद बुस्तामी को माँ की एक दुआ के वसीले से मिल गया, माँ की एक दुआ के सिले से मिल गया। इसलिए याद रखो दुनिया वालों, कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, सरफराजी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, सरकार हुजूर मुजाहिदीन, सरकार हुजूर मुजाहिदीन, सनम साहबा, सनम साहबा, पाक फजतन का एक नारा है, पाक फजतन का एक नारा, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। इसलिए हर वफादार बेटा कयामत तक यही दुआ करता रहेगा। अगर मेरी दुआ में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो सनम शाह बाबा के उर्स में आने वालों हाथ उठा करके तायीद कर देना मेरे शेर की। मैं माँ के हवाले से कह रहा हूँ, पूरी तकरीर का खुलासा एक शेर में बयान कर रहा हूँ। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, वहां से खुद का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे खुदा तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, सरकार हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत, गौस का दामन, गौस का दामन। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के
साथ हो जाओ, सच्चों का दामन पकड़ लो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। सच्चों ने जो काम किए, कभी नमाज को कज़ा नहीं किया, तुम भी नमाज को कज़ा मत करो। सच्चों के दामन से लिपट जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे। तुमको नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा, तुम्हारे अच्छों को देखा जाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हो गई, सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी